Yes. Hello. Good afternoon. Okay. So, am I audible? Okay, right. Perfect. Okay, I'm sharing my screen. Wait for a second. Okay. Okay. Yes. Good afternoon. Am I audible to everyone? Yes. The PPT is visible. Okay. Perfect. Perfect. Okay. Okay. Let's start. Oh, wait. Okay, right, perfect. So, today's session is basically on depression and stress management. I guess depression and stress are two words that are commonly used. And if I'm not wrong, general what I see, although people don't have knowledge about mental health, but somehow they are familiar with the term of depression and stress management. Okay, so let's understand actually what is depression, and for that matter what is stress, and what are the coping skills, or for that matter what are the techniques that you can use in case of stress management. So what I see in general, like even people don't have any knowledge about mental health, but still they are familiar with the word depression. But somehow what I see right now कि डिप्रेशन इतना कॉमनली यूज्ड वर्ड है कि लोग कई बार डिप्रेशन को कंफ्यूज कर लेते हैं मूड डिसऑर्डर से, और फॉर दैट मैटर मूड स्विंग से। ठीक है, somehow हम इतना ज्यादा frequently ये term use कर रहे हैं अपने around that we are not understanding कि depression is actually a psychological issue and it is very different from mood swing जो on a daily basis हम face करते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड, मैं जनरली जब भी सेशन ले रही होती हूँ या इन जनरल क्लासेस में पढ़ा रही होती हूँ, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिप्रेशन। और उनका कहना होता है मैम व्हेन वी फील वेरी लो या व्हेन वी फील वेरी लेजी लेथार्जिक या हमें कुछ करने का मन नहीं होता है तो वी आर इन अ डिप्रेसिव मूड। या इन जनरल किसी का दिन अच्छा नहीं चल रहा है एंड यू आस्क दैट पर्सन कि कैसा चल रहा है, तो इज लाइक आई एम वेरी डिप्रेस्ड। ठीक है, बट डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल टर्म जो हम एक्चुअली अगर देखा जाए तो हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि डिप्रेशन क्या, आप एग्जैक्टली क्या है, एग्जैक्टली व्हाट सिम्टम्स एंड व्हाट ट्रेट्स। हम मूड स्विंग को जनरली डिप्रेशन से कोलैबोरेट कर लेते हैं। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, लेट्स सी नाउ। अंडरस्टैंड मूड स्विंग इज वे जो कि लास्ट ही नहीं करता है, बट इट्स मोर अबाउट सिचुएशन। किसी सिचुएशन में यू आर नॉट फीलिंग वेल तो यू आर फीलिंग लाइक वेरी लो एंड यू थिंक दैट इज डिप्रेशन, दैट इज नॉट डिप्रेशन, दैट इज सिंपली मूड स्विंग। so let's understand what is depression. Now depression is kind of a feeling or for that matter emotion जो कि persist करता है with sadness। ठीक है, now it comes under mood disorder। and जब हम बोल रहे हैं कि mood disorder तो what are the symptoms and what are the feelings। now depression हम जब भी क्लासिफाई या डायग्नोस करते हैं हम अकॉर्डिंग टू DSM-4 करते हैं। DSM-4 इज नथिंग, इज अ मैनुअल फॉर मेंटल हेल्थ, जिसके अकॉर्डिंगली हम जिसके अकॉर्डिंगली हम डिप्रेशन के सिम्टम्स को कैटेगराइज और क्लासिफाई करते हैं। बट डिप्रेशन इज अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, बट सिर्फ सैडनेस का फीलिंग डजंट मीन दैट दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन।
ठीक है, तो देर आर एन नंबर ऑफ सिम्टम्स, एंड ये सिम्टम्स अगर आपके लास्ट करते हैं फॉर 2 वीक्स, फॉर एग्जाम्पल देर आर 15 सिम्टम्स इन केस ऑफ डिप्रेशन, इन 15 सिम्टम्स में से अगर आपके 6 सिम्टम्स भी लास्ट करते हैं फॉर 2 वीक्स, then that person is said to be clinically depressed. Otherwise that is not depression, that is that might be adjustment disorder, that might be a mood swing, but that is not depression. Now let's understand what are the basic symptoms of depression. Okay, now the first symptom that the most common symptom that you can see is that the feeling of helplessness and hopelessness. आप देखते होगे when you are feeling very low, you feel like कुछ भी नहीं हो रहा है. So that is the first symptom. You see symptoms of depression. The next common symptom of depression is that you lost interest. Lost interest in a sense कि आप इंटरेस्ट ही लूज कर लियो कि आपके डेली एक्टिविटीज जो आप इंजॉय करते थे, मे बी योर हॉबी, मे बी योर जिम, और फॉर दैट मैटर मे बी योर पास टाइम, वट एवर इट इज, आप देखोगे आपका इंटरेस्ट ही लूज कर गया. एंड स्पेसिफिकली व्हेन आई एम सेइंग इट कम्स टू हॉबीज, आप देखोगे हॉबीज में आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है. सेकेंड, यू कैन सी दैट आपके एपेटाइट में चेंज हो रहा है. मीन्स हो सकता है आपको बहुत ज्यादा खाने का मन कर रहा हो या बहुत कम खाने का मन करता हो, एकदम ही लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया हो, जिसके कारण वेट में चेंजेस. आपने देखा होगा कि जब आप डिप्रेशन में जाते हो तो बहुत लोग बिंज ईट में चले जाते हैं बिकॉज उनका एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है, तो दे ईट अ लॉट. एंड उधर ही आप देखोगे देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका एकदम ही खाने का मन नहीं करता है, एंड दैट्स द रीजन कि दे वेट काफी लॉस उनका होता है. एंड यू कैन सी दैट चेंज की बॉडी के ओवरऑल वेट में देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 5%. ठीक है, नाउ दीज आर द सिम्टम्स, नॉट नेसेसरी कि हर इंडिविजुअल में सारे सिम्टम्स होंगे. ठीक है, तो स्लीप पैटर्न में चेंज होता है. देयर आर पीपल जिन्हें बिल्कुल ही नींद नहीं आ रहा है, इंसोम्निया आप देख सकते हो, जो रात रात भर जग रहे, नींद आ ही नहीं रहा है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें बहुत नींद आता है, दे आर स्लीप, मतलब ऐसा हो रहा है कि वो प्रॉपर 8 आवर्स का स्लीप ले रहे हैं, उसके बाद भी दे आर स्लीपिंग इन डे टाइम, तो हाइपरसोमनिया होता है. नाउ सी दीज आर देयर आर एन नंबर ऑफ सिम्टम्स, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे इंडिविजुअल को सारे सिम्टम्स होंगे, बट ये जितनी भी सिम्टम्स है उसमें से अगर 5 या 6 सिम्टम्स भी अगर लास्ट कर रहे हैं for 2 weeks, then obviously you are suffering from depression, or for that matter you can be diagnosed as clinically depressed. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिम्टम्स. तो हम और सिम्टम्स की बात करें, आप देखोगे कॉमन या इनिशियल सिम्टम्स आप जो डिप्रेशन के देखोगे, दैट इज आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा बहुत ही छोटे सिचुएशन में भी एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस आपको ट्रिगर करता है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सिटिंग देयर फॉर समथिंग एंड कोई चीज़ के लिए थोड़ा सा डिले हो गया, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग एंड थोड़ा सा डिले हो गया 10 मिनट या 15 मिनट, एंड आप बहुत ज़्यादा एजिटेटेड फील कर रहे हो या इरिटेटेड फील कर रहे हो. दीज आर द इनिशियल साइंस और सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, बाय द वे, जो कि आप माइल्ड डिप्रेशन में भी केस में आप देख सकते हो. लॉस ऑफ एनर्जी, आप देखोगे बहुत लेथार्जिक फील करते हो, आप बहुत ही फटीग में फील करते हो, यू फील एज इफ आपका बॉडी बहुत ही हैवी है, दैट इज वन मोर सिम्टम. सेल्फ लोथिंग बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गिल्ट की फीलिंग बहुत इंक्रीज हो रही है, आप बहुत वर्थलेस फील करते हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर योर मिस्टेक्स एंड फॉल्ट, एंड उसी को आप मैग्नीफाई कर रहे हो. यू विल सी कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है. आप देखोगे आपको कोई पर्सन कुछ बोला और आप तुरंत भूल जा रहे हो. ठीक है, पहले ऐसा होता था कि आप सारी चीज अपने माइंड में प्लान आउट करके रखते थे, बट सम हो आप देख रहे हो अभी किसी ने कुछ बोला एंड आप मिस कर जा रहे हो विद इन लाइक 5 मिनट्स और 10 मिनट, तो कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू फोकस एनीथिंग, और फॉर दैट मैटर आपको डिसीजन मेकिंग करने में भी बहुत टाइम लग रहा है, और फॉर दैट मैटर इट्स बिकमिंग कंफ्यूजिंग और आपके लिए बहुत ही टायरसम हो जा रहा है. मतलब इट्स लाइक strong for that matter is a difficult task for you. सिमिलरली आप देखोगे कि आपको बहुत बॉडी एक या पेन, नॉट नेसेसरी हर कोई को फिजिकल सिम्टम्स दिखेगा डिप्रेशन में, बट देर आर सो मेनी पीपल जो कि डिप्रेशन या डायग्नोस्ड होते हैं डिप्रेशन से, उनमें अनएक्सप्लेन्ड पेन होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ फिजिकल सिम्टम, हेडेक हो सकता है, कोई बैक पेन हो सकता है, बट देर इज दिस इज एन अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम, मीन्स एक्चुअली में आपको कोई फिजिकल इशू नहीं हुआ होगा, but somehow that emotional drain out is coming through your physical symptom. So these are few symptoms जो आप देख सकते हो डिप्रेशन के होते हैं, and these symptoms are found to be more or less, यही सारे symptoms आप डिप्रेस पेशेंट में देख सकते हो. but you need to remember कि अगर ये shorter time के लिए है, then that is mood swing. And for that matter, when I am saying shorter time, remember there are types of depression जो shorter time के लिए भी होते हैं, but remember
कोई भी मेंटल इशू या मेंटल प्रॉब्लम डिसऑर्डर में तभी कन्वर्ट होता है जब उसका डिग्री, इंटेंसिटी और फॉर दैट मैटर थ्रेशोल्ड इतना हाई हो कि वो आपके डेली रूटीन या लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिमेंबर, कोई भी इमोशनल इशू और फॉर दैट मैटर कोई फिजिकल और साइकोलॉजिकल इशू तब तक प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है जब तक वो आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू ना करे। बिकॉज स्ट्रेस फॉर दैट मैटर, डिप्रेशन या not exactly depression but low mood or sadness or for that matter anxiety या stress, obviously हम सब में एक डिफरेंट फॉर्म में होता ही है। यू कान से कि मैं एंग्शियस नहीं हो सकता, मैं एंग्शियस नहीं होता, या फॉर दैट मैटर यू कान से कि मैं स्ट्रेस नहीं होता हूँ या मैं कभी लो नहीं फील करता हूँ। हम सब में ये सारे ट्रेट्स एंड सिम्टम्स होते हैं, जस्ट कि ये सिम्टम्स के डिग्री या इंटेंसिटी इतना हाई हो कि आपके रेगुलर लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करे, then we can say कि that person is suffering from mental disorder and you can categorize वो कोई भी mental disorder, for example in this case depression हो। okay, understood? Okay, now next हम देखेंगे डिप्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पे हमने दो तरीके से कैटेगराइज किया है डिप्रेशन को। एक हमने कैटेगराइज किया है कि डिप्रेशन जो कि ओरिजिनेट हो रहा है फ्रॉम अ डिस्टर्बिंग इवेंट, और फॉर दैट मैटर आपके लाइफ में कुछ ऐसा डिस्टर्बिंग या डिफिकल्ट इवेंट आ गया जिसके कारण डिप्रेशन को लीड किया। फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ लव वन, और फॉर दैट मैटर फाइनेंशियल क्राइसिस, फॉर दैट मैटर आपका जॉब आपसे छूट गया। मतलब देर इज अ डिस्टर्बिंग इवेंट, और फॉर दैट मैटर देर इज अ डिस्टर्बेंस सिचुएशन जिसके कारण ओरिजिनेट हो रहा है डिप्रेशन। दैट इज वन सेक्शन, वन डोमेन ऑफ डिप्रेशन। बट ऐसा नहीं है कि एवरी इंडिविजुअल जिस जो भी पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इट्स नॉट नेसेसरी कि देर इज अ कॉजल फैक्टर, फॉर दैट मैटर देर इज अ डिस्टर्बिंग इवेंट। देर आर टाइम्स you feel low, or for that matter you are clinically depressed without any cause, or for that matter without any reason। सो जब मैं बोलती हूँ कि डिप्रेशन को हम यहाँ पे दो लेवल्स में या दो सेक्शंस में कैटेगराइज कर रही हूँ। द फर्स्ट डिप्रेशन जहाँ पे देर इज अ कॉजल फैक्टर और देर इज अ सोर्स, और फॉर दैट मैटर देर इज अ प्लेस जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, एंड देर इज अ डिप्रेशन जहाँ पे देर इज नो सच कॉज। नाउ अंडरस्टैंड, एटलीस्ट जहाँ पे डिप्रेशन हैज अ कॉज, it's easy to treat it, it's easy to give counseling, for that matter therapy। बट ऑन द अदर हैंड, इन केस जहाँ पे डिप्रेशन के कोई कॉज एज सच नहीं, कोई अपरेंट कॉज नहीं है, विदाउट एनी कॉजल फैक्टर, फॉर दैट मैटर विदाउट एनी ट्रिगरिंग फैक्टर, द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, इट्स रियली डिफिकल्ट। वैसे केस में ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उन्हें काउंसलिंग देना या उन्हें हेल्प आउट करना इन केस ऑफ डिप्रेशन। उन क्योंकि हमारे पास सोर्स फैक्टर का ही हमें आइडिया नहीं होता है, तो वी डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पे हमें वर्क करना है। तो इट्स इन दैट केस इट्स रियली डिफिकल्ट, अगर कोई कॉजल फैक्टर, कोई एज सच कोई कॉज ना हो इन केस, तो हमें हैंडल करना मुश्किल होता है। बिकॉज एटलीस्ट इन द फर्स्ट और फॉर दैट मैटर फॉर्मर वन, वी हैव दैट ट्रिगर पॉइंट और ट्रिगर्ड स्टिमुलस जिसके जिसके कारण या जिसके जिसके कारण ओरिजिनेट हो रहा है डिप्रेशन। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका देर इज नो सच कॉजल फैक्टर एंड you feel depressed, it's really difficult to give counseling and therapy। and you can see actually a lot of people, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग especially coming to दिस जनरेशन, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ जो जनरेशन होते हैं, आप देखो कि देर इज नो सच कॉजल फैक्टर जो स्पेसिफिक फैक्टर वो क्वेश्चन कर सकते हैं या पॉइंट आउट कर सकते हो कि दिस इज द फैक्टर दैट इज एक्चुअली ट्रिगरिंग मी, और दिस इज द फैक्टर जिसके कारण आई फील लो और सैड। इन जनरल आप पूछो कि आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, एंड देर इज नो सच अपरेंट कॉज, और फॉर दैट मैटर कोई प्रोमिनेंट ट्रिगरिंग स्टिमुलस होगा, तो दैट इज रियली डिफिकल्ट टू काउंसिल, और फॉर दैट मैटर टू प्रोवाइड देम थेरेपी। ओके, so that is the two major domain, or for that matter, that is the two major dimension where we categorize depression. Now let's go to the other slide. Okay, let's talk about type of depression. Okay, as I said, the definition, the symptoms, or what is depression is all given by diagnostic statistical manual। हम ऐसे आम भाषा में depression low mood को बोलते हैं, but as I said, वो low mood जो persist करे for 6 months with
at least 5 to 6 symptoms, we diagnose that person as clinically depressed, and ये पूरे diagnostic criteria is given by DSM, that is Diagnostic Statistical Manual, that we follow in psychology, or for that matter for mental health patient. ठीक है. Now what is the type of depression? Now type of depression समझने के लिए we understand that what is the basic symptoms of depression, that you feel sad. Obviously there is a there might be a source that originate depression, could be anything, because you lost someone, you lost your job, your close friend, or for that matter you fail in your exam, your for that matter you fail to get your favorite job, or for that matter favorite college or something like that. But when we classify depression, it's not, we are not classifying depression, or for that matter we don't classify, or the types of depression is not classified according to their symptoms. In fact, the classification or types of depression is classified according to the impact of depression. टाइप्स ऑफ डिप्रेशन को हम कभी क्लासिफाई नहीं कर रहे हैं इस बेसिस पे कि उसके सिम्टम्स कितने हैं या कितने ज़्यादा, या सोर्स कहाँ से आ रहा है. हम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन को क्लासिफाई करते हैं विद द पॉइंट दैट द डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ डिप्रेशन जो लास्ट करेगा 2 और फॉर 2 और 3 डेज, बट ऑब्वियसली वो 2 और 3 डेज भी ऑन एंड ऑफ लास्ट करते रहेगा फॉर 6 मंथ to to say it that that person is clinically depressed. Similarly, there are certain depression that is in milder form, means the impact is milder. There are certain form of depression, the impact is quite major, for that matter the impact is strong and significant, so that comes under major depressive. So let's go through the types of depression just to understand. मैं एक बार और समझा दूं कि टाइप्स ऑफ डिप्रेशन को हम कभी क्लासिफाई नहीं करते कि उसमें कितने सिम्टम्स, फॉर दैट मैटर उनका सोर्स कितना स्ट्रांग है या सोर्स क्या है. क्लासिफिकेशन इज मेजरली ऑन द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन. उस डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या है पर्सन पे, माइल्डर फॉर्म पे, मेजर फॉर्म में, किस फॉर्म में है, उसके अकॉर्डिंगली हम टाइप्स ऑफ डिप्रेशन को क्लासिफाई करते हैं. एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू DSM-5. द एंटायर पर्पस जहां से मैंने शुरू किया टू मैंने स्टार्ट किया आपको आपका ये क्लास, दैट इज डिप्रेशन. रिमेंबर, wait, uh, sorry, wait. सॉरी, आपको स्लाइड्स चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं क्या? नो. ओके ओके, वेट फॉर अ सेकेंड. अच्छा, यू आर ओनली सीइंग द स्लाइड 2. ओके, वेट. वेट. No slides. Okay, okay, I'm seeing. Wait. Uh, I'm sharing my. I'm stopping my screen and then I'm sharing it again. Wait.
Okay. I'm sharing my screen again. Let's see. When hold for a second. Hmm. Chitra. Hold for a second. Sorry. Uh, Sorry for the disturbance. Is this visible now? The PPT is visible? Perfect. Okay. Sorry. Really sorry. Okay. Right. Okay. See. So yes, we were talking about the types of depression. So yes, type of depression. We don't classify depression on the basis of symptoms, or for that matter, the source from where it has been originated. Basically, we classify according to the impact of depression or impact of depression on individual. Okay. Now, initially, when I started the whole concept of depression, it was actually for you to understand that why we use depression so commonly, but it's not as common as we think. And I guess I explained you how the intensity and impact matter to become it a disorder from just a mood swing. Okay, so let's start from the first topic, or for that matter, the first type of depression, that is mild depression. Okay, now mild depression, as I said, there is nothing different when I'm saying there are different types of depression. There is nothing different in sense of symptoms. Means there's a type of mild depression, major depression, or moderate depression. Symptoms सारे के same है. That there will be loss of interest, there will be a loss of sleep, or for that matter there will be a change in sleep, or for that there will be like change in appetite, loss of interest in hobbies, irritation, agitation, lethargic, or for that matter poor concentration. ये सारे symptoms almost सारे type of depression में रहेंगे. But the difference is the impact that the situation has on the person. तो in case of mild depression, आप देखोगे mild depression generally लोगों में बहुत milder form में रहता है. Means ये सारे सिम्टम्स आप बहुत ही माइल्डर फॉर्म में आप में होगा, एंड समहाउ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं लाता है. एंड दैट्स द रीजन यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. एंड मैंने देखा है मेजोरिटी जब मैं केसेस लेती हूँ, लोग माइल्ड डिप्रेशन से जब सफर कर रहे होते हो, दे आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, और फॉर दैट मैटर दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि माइल्ड डिप्रेशन उन्हें है. एंड क्योंकि ये परसिस्ट कर जाता है फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज आपको रियलाइज ही नहीं होता है कि आप डिप्रेशन से सफर कर रहे हो, फिर लॉन्ग टाइम पे आप देखोगे देर इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट. 6 मंथ आप देखते हो कई बार आपका कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो रहा है, डिटोरिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, because maybe you're not happy in your job,
देयर इज अ chaotic होम एनवायरनमेंट, या फॉर दैट मैटर आप अपने हाउस होल्ड के भी वर्क से बहुत ज्यादा परेशान हो, आप देखते हो कि आप हमेशा टायर्ड और बहुत ही फटीग फील कर रहे हो, बहुत ही थका फील करते हो, समहाउ आपका स्लीप भी कंप्लीट नहीं हो पाता है, हमेशा लेथार्जिक फील करते हो, आप कंप्लीट स्लीप भी ले रहे हो, स्टिल आपको लगता है आपका स्लीप पूरा नहीं हुआ है, गिल्ट और वर्थलेसनेस की फीलिंग आपको ट्रिगर करती रहती है, बट समहाउ इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि आप अपने आप को क्वेश्चन करें कि ओके देर इज समथिंग दैट इज प्रॉब्लमेटिक। कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट इतना लाइटर फॉर्म में होता है कि आपको लगता है इट्स ओके, अभी क्योंकि मेरे बहुत स्ट्रेस चल रहा है या मेरे पास अभी बहुत वर्कलोड है, वंस ये वर्कलोड खत्म हो जाएगा आई विल बी ओके। ओके, वंस ये सारा चीज वाइंड अप हो जाएगा, तब आई विल बी ओके, आई विल बी इन अ हैप्पियर स्टेट, बट वी डोंट रियलाइज दैट दिस इज एन इनिशियल स्टेप ऑफ दैट मैटर, इनिशियल पार्ट ऑफ डिप्रेशन। एंड क्योंकि ये माइल्डर फॉर्म में होता है, मीन्स द इम्पैक्ट इज इन लाइट, इम्पैक्ट इज यू कैन सी लोअर इन द पर्सन। तो आप बहुत कोई स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं देख रहे हो, तो आपको लगता है ओके फाइन, एवरी वन इज गोइंग थ्रू, एंड स्पेशली वॉट आई सी, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस जो कि बहुत ही पुअर है, व्हेन आई स्पीक अबाउट इंडियंस इन जनरल, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ही जीरो के लेवल पे, एंड स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन, आई गेस वुमेन का वर्क लाइफ बैलेंस तो और पुअर है, बिकॉज दे आर हैंडलिंग बाहर का भी काम, एंड दे आर हैंडलिंग देयर हाउस होल्ड चोर्स एज वेल, एंड सम हाउ एक्चुअली इनिशियल फॉर्म ऑफ डिप्रेशन या माइल्डर फॉर्म में हम डिप्रेशन में होते भी हैं, तो वी फील कि दिस इज समथिंग दैट इज हैपनिंग टू एवरीवन, तो कुछ नया नहीं है, तो वी डोंट रियलाइज और फॉर दैट मैटर रिकॉग्नाइज कि एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट अगर आप माइल्डर फॉर्म डिप्रेशन को आप इनिशियली रियलाइज या रिकॉग्नाइज कर लो, इट्स ईजियर टू क्योर, और फॉर दैट मैटर इट्स ईजियर टू गिव थेरेपी, और फॉर दैट मैटर टू वर्क ऑन इट, क्योंकि यही माइल्डर फॉर्म, यू नेवर नो कि मेजर में कब कन्वर्ट हो जाएगा या मॉडरेट में कब कन्वर्ट हो जाएगा, कभी भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस जैसे ही ट्रिगर करेगा, यू ऑलरेडी देयर, एंड वो माइल्ड से मॉडरेट कन्वर्ट होने में या माइल्ड से मेजर कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगता है। सो वी डोंट रियलाइज कि माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन के क्या इम्पैक्ट हो सकता है, बट व्हाट आई फील, बिकॉज जितने भी इंडिविजुअल जिनका वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ द हाई डिमांड्स जो उनके ऑफिशियल सेटिंग्स में है या वर्क सेटिंग में है, एंड सेम टाइम पे दे हैव बीन वर्किंग इन हाउस होल्ड्स एज वेल, आप देखोगे somehow they are actually fighting, or for that matter actually going through a milder form of depression, but it's just that they don't realize it is a milder form of depression. Okay, so let's switch to next slide. हाँ, now milder form of depression, as I said, the symptoms तो सेम होते हैं, but somehow उसका impact shorter form में होता है. Now as I said कि हम depression तब diagnose करते हैं when that person uh, has that symptom for 6 month persistently. For example, अगर मेरे पास 5 या 6 symptoms हुए कि ओके फाइन, मुझे मेरे एपेटाइट में चेंज हुआ है, मेरे स्लीप पैटर्न में चेंज हुआ है, मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ है, मुझे मेरा कंसंट्रेशन पुअर हुआ है, मेरा डिसीजन मेकिंग पुअर हुआ है, ये 5 सिम्टम है, और 5 सिम्टम अगर मेरा लाई कर रहा है फॉर 6 मंथ, वी से दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, ठीक है, बट हो सकता है माइल्डर फॉर्म में, बट माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन अगर लास्ट कर जाए फॉर 2 years, एंड आई एम टेलिंग यू माइल्डर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन एक्चुअली लास्ट कर जाता है फॉर 2 years, वाई, बिकॉज एज अ पर्सन हम रियलाइज ही नहीं करते, वी डोंट इवन रिकॉग्नाइज कि एक्चुअली वी आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल हेल्थ इशू, और फॉर दैट मैटर डिप्रेशन, तो हम उसे बोलते हैं डिस्थेमिक डिसऑर्डर। डिस्थेमिक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिप्रेशन जो माइल्डर फॉर्म में आता है, क्योंकि इनके इसके सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, लो लेवल के होते हैं, बट ये जनरली परसिस्ट करता है फॉर 2 or more than 2 years, तब हम बोलते हैं डिस्थीमिया से पर्सन सफर कर रहा है, मीन्स that person is suffering from that person is actually clinically depressed but specifically classified as dysthymia. So dysthymia is actually a form of mild depression. Obviously the symptoms is mild and low, but it will last for 2 years. ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है किसी पर्सन को, पर हो सकता है वो 7 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए, फॉर दैट मैटर 1 ईयर के लिए, बट अगर वो 2 या 2 साल से ज्यादा लास्ट कर जाता है, तो वैसे केस में हम उसे डिस्थीमिया बोलते हैं। नाउ रिमेंबर, कई बार डिस्थीमिया जब फॉर एग्जांपल हो क्या रहा है, माइल्ड फॉर्म में आपको सिम्टम्स आपके लाई कर रहे हैं डिप्रेशन के,
एंड समहाउ आप उसे इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, एंड जब 2 और 2 साल से ज़्यादा हो गया मीन्स आप डिस्थेमिक डिसऑर्डर या डिस्थीमिया में आ चुके हैं, बट यू डोंट हैव द रियलाइजेशन कि आप माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं। देन जब डिफिकल्ट या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आता है तो वो स्टिमुलस ट्रिगर करता है आपको स्ट्रांगली, बिकॉज यू आर ऑलरेडी देयर इन द वल्नरेबल स्टेट, आप एक वल्नरेबल स्टेट में रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी और कॉम्प्लिकेटेड, फॉर एग्जाम्पल you are struggling and juggling between your work life and your household chores, ठीक है, एंड ये चल रहा है, एंड यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, बट समहाउ आपने कभी रियलाइज नहीं किया। जब ये दो दो साल से ये लगातार आपके साथ चलते जा रहा है, आई एम टेलिंग यू, और 2 साल के बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ट्रिगरिंग रहा, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया, या जिस जॉब के लिए यू वर वर्किंग सो हार्ड वो जॉब आपसे चला गया, दैट स्टिमुलस ट्रिगर्स यू, एंड फिर वो एपिसोड्स देते हैं आपको मेजर डिप्रेशन के। मेजर डिप्रेशन इज लाइक द इम्पैक्ट ऑफ सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन स्ट्रोंगर होंगे व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट टू माइल्ड एंड मॉडरेट। तो कई बार देखा गया है कि यही परसिस्टेंट माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन अगर 2 या 2 साल से ज़्यादा परसिस्ट कर जाता है, एंड देन कोई ट्रिगरिंग पॉइंट आता है, एंड देन द पर्सन एक्चुअली मेजर डिप्रेशन में फॉल कर जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप देखोगे कोई पर्सन डिप्रेशन के सिम्टम्स से गो थ्रू कर रहा है, स्पेसिफिकली मेजर डिप्रेशन के सिम्टम्स में देयर इज हाई, मतलब हाई एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। तो हम सोचते हैं कि यार ये पर्सन तो इतना स्ट्रांग था, इसने तो 2-3 साल सारा कुछ मैनेज कर लिया, घर भी बाहर भी सब कुछ, अचानक से ऐसा हुआ और ये हैंडल ही नहीं कर पाया। बट वी डोंट रियलाइज कि ये 2 या 3 साल से दिस पर्सन was actually suffering from mild form of depression, and उसको रियलाइजेशन नहीं था क्योंकि इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्गर नहीं था, बट समहाउ कुछ बहुत सिग्निफिकेंट या इवेंटफुल या फॉर दैट मैटर डिस्टर्बिंग हो गया, जिसके कारण वो पर्टिकुलर स्टिमुलस ट्रिगर किया, एंड पर्सन इज नाउ सफरिंग फ्रॉम मेजर डिप्रेशन। एंड देन वी रियलाइज कि यार अचानक से कितना इमोशनली वल्नरेबल हो गया, अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स कैसे, बट वी डोंट रियलाइज इट इज कमिंग फ्रॉम पास्ट, ये 2-3 साल से चल रहा होता है, जो 2-3 साल से हम पाइल अप कर रहे होते हैं, सप्रेस कर रहे होते हैं, एंड बेसिकली वी डोंट रियलाइज कि हमें माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में भी वर्क करना होता है। एंड आई फील स्पेशली माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन जो मैंने परसिस्ट होते हुए देखा है, इट्स नॉट लाइक कोई जेंडर बायस नहीं है, बट स्टिल मैंने फीमेल में ज़्यादा परसिस्ट होते हुए देखा माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन और डिस्थीमिया व्हेन आई एम कंपेयरिंग इट टू द मेल काउंटर पार्ट। ठीक है, सो जनरली आप देखोगे जो पेशेंट होते हैं डिस्थीमिया के, ऑब्वियसली 2-2 साल से 2 या 2 से ज़्यादा साल से आपको ये सिम्टम्स होते हैं, तो वो आप देखोगे जनरली आप उनसे मिलोगे दे आर वेरी लो इन एनर्जी, आप देखोगे जनरली दे आर वेरी लेथार्जिक लेजी, समहाउ अ फॉर्म ऑफ इंट्रोवर्जन आप देख सकते हो, जनरली सोशल होना कम ही पसंद करते हैं, दे आर वेरी सेल्फ क्रिटिकल एंड कंप्लेनिंग इन नेचर एंड पेसिमिस्टिक इन नेचर। हर चीज़ में कंप्लेन कर रहे हो या हर चीज़ में बहुत ही लो फॉर्म में, कुछ होना ही नहीं है, क्यों ही बैठे, क्या ही देख रहे हैं, मतलब वेरी लो, बिकॉज समहाउ दैट इज कमिंग फ्रॉम 2 years, वो 2 साल का पाइलअप होता है, दैट सिम्टम्स दैट इज टर्निंग, तो बहुत ही लेथार्जिक लो, बहुत ही पेसिमिस्टिक आप इन ऐसे लोगों को देखोगे, तो यू कैन सी अगर ये कंसिस्टेंट सिम्टम चल रहा है किसी में साल 1.5 साल से, तो देर इज अ हाई चांस दैट पर्सन इज गोइंग टू incline, or for that matter that person has a tendency toward dysthymia। ठीक है, तो समहाउ डिस्थीमिया आप एक क्रोनिक स्टेट ऑफ डिप्रेशन माना जाता है, क्रोनिक स्टेट बिकॉज ये लास्ट कर रहा है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन टाइप ऑफ डिप्रेशन जो हम लेटर ऑन आगे पढ़ेंगे, जो जनरली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, बट ऑन द अदर हैंड डिस्थीमिया को अगर देखोगे माइल्डर फॉर्म में इम्पैक्ट लो होगा, बट स्टिल वो आप देखोगे वो आप लॉन्गर फॉर्म में आप देखते हो, एंड आई फील समहाउ दिस इज समथिंग जो कि आप फीमेल में बहुत प्रोमिनेंटली देख सकते हो। बच्चों में भी देखा जाता है, टीनेजर्स में भी देखा जाता है, उनमें तो ड्यूरेशन जनरली 1 साल के बाद ही उन्हें बोल दिया जाता है, अगर 1 साल परसिस्ट करता है दैट लो एंड डिप्रेसिव सिम्टम्स, देन आई वी से कि दैट चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिस्थीमिया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ डिप्रेशन। अंडरस्टूड, क्लियर यहाँ तक, है ना? शैल आई 1 मिनट मुझे एक बार चेक करने दीजिए, कोई चैट में कुछ है, इज देयर एनी क्वेश्चन?
Not everyone, I would say, can have dysthymia, but yes, if it's matlab, for example, if you have these similar symptoms and it is lasting for more than 2 years, तो yes you can say. अभी आप different types मैं बताऊंगी और depression के, तो you will realize कि yes, some people have different form. कुछ लोगों को seasonal भी होता है, अभी हम different forms और पढ़ेंगे तो you will come to know. But yes, milder form में हो सकता है, but not for everyone. Okay, full form of DSM is Diagnostic Statistical Manual. DSM अभी currently जो latest version है DSM का, that is DSM-5, Diagnostic Statistical Manual 5, जो कि एकदम current version है, I guess 2022 में आया है. ऐसे DSM-4 TR is something that we have been using, that is Diagnostical Statistical Manual 4. Generally जो भी mental health disorders है, depression, sleeping disorder, eating disorder, एंजाइटी, स्किज़ोफ्रेनिया, कोई भी डिसऑर्डर, इट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग डीएसएम, अकॉर्डिंग टू डीएसएम. हाँ, हमारे पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी वी विल बी डीलिंग, इट्स आल्सो अ टाइप ऑफ डिप्रेशन. ओके, या यू विल गेट दिस पीपीटी आई गेस. ओके, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन, किसी ने यहाँ पे पूछा है कि माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को हम कैसे, वेट फॉर अ सेकेंड, सॉरी, हाँ, माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सो यू नीड टू सी आपके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, जो मैंने सिम्टम्स आपको इनिशियली आपको जो 10 सिम्टम्स बताए थे डिप्रेशन के, आप वो 10 सिम्टम्स को आप देखना या चेकआउट करना अपने बिहेवियर में शुरू करिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने देखा है इन जनरल जो जितने भी पेशेंट आते हैं, इनिशियली जो सिम्टम्स होते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, ब्रेन फॉग, और फॉर दैट मैटर पुअर डिसीजन मेकिंग, बहुत जल्दी क्विक आप बिहेवियर में ऑब्जर्व कर सकते हैं. लाइक एग्जाम्पल, इफ आप बहुत ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ऑर्गेनाइज पर्सन हो, बहुत चीज टाइम से सारे चीज कर लेते हो, सब कुछ प्लान करके, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, फॉर एग्जाम्पल आप चीजें भूल रहे हो, आपको हमेशा चीजें याद रहता था, आप घर का सारा चीज टाइम से और हर चीज कर ले रहे हो, बट नाउ आप देख रहे हो पिछले एक हफ्ते से या पिछले एक महीने से आप चीजें भूल रहे हो, देन यू नीड टू रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. तो आप अपने बिहेवियर को चेक करते रहो. सी, रिमेंबर वन थिंग, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, जितने भी हमने 10 या 12 सिम्टम्स बोले, जब हम ये सिम्टम्स सुनते हैं, हमें लगता है ये सारे सिम्टम्स हमारे अंदर है, बट दैट डजंट मीन कि यू आर सफरिंग फ्रॉम अ डिसऑर्डर. डिसऑर्डर टर्म हम तभी यूज करते हैं जब उसकी डिग्री, इंटेंसिटी, और फॉर दैट मैटर थ्रेशोल्ड एक सर्टेन क्राइटेरिया को क्रॉस करे और आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे. अगर वो आपके डेली लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देन वी कैन से दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर. ठीक है, बट अगर आप हैंडल कर ले रहे हो एंड सिम्टम्स आर वेरी लो, देन येस, दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर. एंड एज द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया सेज कि आपका ये सिम्टम मिनिमम 6 मंथ लास्ट करना ही चाहिए. अगर मिनिमम 6 मंथ लास्ट कर रहा है, देन ओनली यू कैन से कि येस, यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. ये जो भी सिम्टम्स है उसमें से 4 या 5 आपको जो भी मिनिमम 6 मंथ के लिए लास्ट कर रहा है. ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना शुरू करें. पहले, सबसे पहले चीज जो अपने बिहेवियर में आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं. अगर चेंजेस आ रहे हैं तो सी कितने दिन से आ रहे हैं, कितने दिन से परसिस्ट कर रहे हैं, एंड इफ देर इज अ रीजन, देर इज अ सोर्स जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, देन इट्स इजी टू वर्क. बट इफ देर इज नो सोर्स, क्योंकि आजकल मैंने देखा है people enjoy being sad or lonely somehow I have seen ki through social media, or for that matter through digital media, or for that matter I have seen जो movies and OTT platform पे shows भी आते हैं, उस चीज को glamorize करते हैं. तो अगर आप glamorize कर रहे हो certain चीज को, तो what I see, especially Gen Z में देखती हूँ, जो ये generation है, they actually enjoy being sad, lonely or depressed, although obviously not using the correct term depressed, but they enjoy being in that particular state. ठीक है, तो if that person is enjoying, because and obviously the impact, there is no such source, तो थोड़ा difficult होता है, but with time you can actually help. Now there are a lot of therapy that is involved in treating depression, तो वो हम कभी और डिटेल में करेंगे, बट जिन्होंने पूछा है, बट थेरेपी actually helps, especially CBT. Okay, so let's go to next slide. That is major depressive disorder.
ठीक है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि माइल्ड डिप्रेशन क्या होता है, एंड सम हाउ आई फील कि माइल्ड डिप्रेशन आप सब में हो सकता है, बट परसिस्ट नहीं करेगा 2 साल तक या 6 महीने तक, पर अगर कर रहा है मीन्स यस देर इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। नाउ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम कॉमनली कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, और फॉर दैट मैटर क्लिनिकल डिप्रेशन। जो क्लिनिकली डिप्रेस्ड है पर्सन, हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए ही बोलते हैं, or for that matter unipolar depression. Now, what is unipolar depression? For example, unipolar depression means कि आप मूड के एक ही पोल के साइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल जब हम मूड का बात करते हैं तो देर इज अ लाइन एंड देर आर टू पोल्स, ठीक है। एक पोल जहां पे आप बहुत लो सैड फील करते हो, एंड द अदर पोल, द अदर एक्सट्रीम इज जहां पे आप बहुत हाई और इलेटेड फील करते हो। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यूनिपोलर डिप्रेशन सिम्टम्स रहेगा, मींस देयर इज नो सच हाई और इलेटेड और फॉर दैट मैटर हैप्पी स्टेट। आप सिर्फ लो और सैड फील करते हैं। यही यूनिपोलर की जगह जब हाईली इलेटेड सिम्टम्स भी होता है तो हम उसे बाईपोलर नाम देते हैं। दैट इज ऑल्सो अ डिसऑर्डर जिसे हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को हम यूनिपोलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मूड का जो पोल होता है उसके एक ही एक्सट्रीम का बात करता है मेजर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, दैट व्हेन यू फील वेरी लो, फॉर दैट मैटर वेरी सैड। ठीक है। आप देखो कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, एक्चुअली मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, एंड आप देखो कि मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स आर बेसिकली सिंगल एपिसोड्स ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट। कोई पर्सन का बहुत ऐसा डिस्टर्बिंग इवेंट या कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ इवेंट हुआ हो, और जिसके बाद दैट पर्सन इज फीलिंग वेरी लो, वेरी सैड। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना हो सकता है मैंने अपना ड्रीम जॉब मेरा मिस हो गया या छूट गया मेरा, एंड उसके बाद देर इज एन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। व्हेन आई एम सेइंग एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव मोड और डिप्रेशन, इज मीन कि उस इवेंट के बाद मेरे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन परसिस्ट किए फॉर फ्यू मंथ, एंड देन ओके हुआ बट नॉट वेरी हाई और हैप्पी। फिर कोई छोटा सा स्टिमुलस आया और ट्रिगर किया, उसके बाद हो सकता है कोई मैं अपने फैमिली में किसी को लूज कर गई, एंड देन अगेन देर इज एन एपिसोड ऑफ डिप्रेशन। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिप्रेसिव एपिसोड्स चलते हैं, एंड ये रिकरेंट फॉर्म में होते हैं। मीन्स कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जो फेस कर रहे होते हैं, दे आर कंटिन्यूअसली गोइंग थ्रू डिप्रेशन। एंड होता क्या है कि जब भी कोई स्ट्रॉन्गर इवेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही मेरा जॉब छूटा, I was there in there was a strong impact, और मेरे strong impact of depressive symptoms थे, मतलब एक episode of depression चला, and फिर वो normal हुआ, but normal इतना नहीं हुआ that I am happy or in a normal state, but तब तक जब वो normal या basic level पे आ ही रहा था, again there is an event, and then there is an episodic depressive episode. तो there is n number of depressive episode in case of major depressive disorder, and जरूरी नहीं है कि हर बार इवेंट इतना स्ट्रॉन्ग इनफ हो जिसके कारण देर इज अ डिप्रेसिव एपिसोड। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पहली बार मेरा जब जॉब छूटा तो चलो इट्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग, इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग इन माई लाइफ, तो ऑब्वियसली मैं डिप्रेशन के फेज में गई। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ हो, कुछ हो सकता है कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो मेरी जिससे कुछ प्रॉब्लम हो गया जिसके कारण बातें थोड़े दिन के लिए बंद हो गई, कुछ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हुआ, बट स्टिल मैं डिप्रेसिव एपिसोड में आ रही हूँ। तो देर होता बेसिकली ये कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में यू कैन सी एन नंबर ऑफ डिप्रेसिव एपिसोड्स, एंड ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालते हैं पर्सन के लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल माइल्डर के केस में इम्पैक्ट लो लेवल पे है, बट इन केस ऑफ मेजर डिप्रेशन जो इम्पैक्ट है दैट इज मोर स्ट्रॉन्गर। फॉर एग्जाम्पल वो आपके फैमिली के पर्सनल इश्यूज में या आपके पर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लाने लगेंगे, अगर आप कहीं वर्क में है या स्कूल लाइफ है वहां प्रॉब्लम आना शुरू होगा, मतलब इम्पैक्ट इज स्ट्रॉन्गर एज इन की विजिबल है, नॉट ओनली टू यू बट टू अदर्स एज वेल। जहां पे माइल्ड फॉर्म ऑफ डिप्रेशन में सिम्टम्स आप खुद ही रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, आप खुद ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड मेजर डिप्रेसिव में सिम्टम्स इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप में, फॉर दैट मैटर वर्क स्कूल एंड एवरीवेयर, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट रखते हैं कि इट्स विजिबल टू एवरीवन एल्स। ठीक है। तो ये भी मतलब फॉर एग्जांपल आप देखोगे माइल्ड और मेजर में, तो मेजर में एपिसोड्स आर फ्रिक्वेंट जो कि रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव एपिसोड्स होते हैं, एंड बी द इम्पैक्ट ऑफ सिम्टम्स आर स्ट्रॉन्गर, जो कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आप देख सकते हो पर्सन के लाइफ में। नाउ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में फर्दर डीएसएम ने इसे
क्लासिफाई किया है सब टाइप्स में। तो अब हम इसे देखते हैं कि कौन कौन से सब टाइप्स में इन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है। हाँ, नाउ सबसे पहला आ रहा है, सबसे पहला अंडरस्टूड यहाँ तक आई गेस। Yes, ठीक है। ओके, नाउ सबसे पहला है दैट इज एटिपिकल डिप्रेशन। नाउ एटिपिकल डिप्रेशन इज नथिंग, इज बेसिकली कैरेक्टराइज्ड बाय मूड रिएक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, कोई भी पर्सन जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहा है, ऑब्वियसली देयर इज एन एपिसोड ऑफ डिप्रेसिव मूड, ठीक है। बट देयर आर टाइम्स जब उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा होगा, या कोई एक फॉर एग्जाम्पल वो अपने फेवरेट हॉबी में गए या अपने फेवरेट पर्सन से मिलने गए, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उनका मूड अच्छा, इन अ सेंस आई एम नॉट सेइंग वेरी पॉजिटिव, ठीक है, बट पॉजिटिव इन अ सेंस कि न्यूट्रल हो जा रहा है, ठीक है। एंड देन व्हेन दैट पर्सन इज बैक टू होम, फिर से उसका वो डिप्रेसिव जोन या डिप्रेसिव एपिसोड में वो पर्सन चला जा रहा है। तो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग कि एटिपिकल डिप्रेशन, एक पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एटिपिकल डिप्रेशन, पर्सन का प्रॉब्लम क्या है कि वो मेजर एपिसोड्स तो आ रहे हैं उसके डिप्रेशन के, बट जब भी कुछ ऐसा हो रहा है जो उसके लिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस रखता है, या फॉर दैट मैटर दैट पर्सन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी या वाइब रखता है, उस पर्टिकुलर स्टेज में ही और शी इज ओके। जनरली आप देखोगे बहुत सारे जब क्लाइंट या पेशेंट आते हैं जो कि डिप्रेशन से, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, आप देखोगे दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, लेकिन थेरेपी में दे एक्चुअली फील बेटर, और फॉर दैट मैटर वो उन्हें सेफ स्पेस लगता है, ठीक है। तो वो जितने देर थेरेपी में रहते हैं, दे आर एक्चुअली ना स्टेबल स्टेट, आई कैन से नॉट लाइक सेम स्टेट, बट एक स्टेबल स्टेट में रहते हैं। सिमिलरली जब आप देखो कि डिप्रेशन के पेशेंट को हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या मेडिटेशन, योगा में लाते हैं, तो सिमिलरली आप देखोगे कि ऐसे वो बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत परेशान है, एपिसोड्स चल रहे हैं, बट द मोमेंट वो मेडिटेशन और योगा में है, उस मोमेंट के लिए दैट पर्सन इज इन स्टेबल स्टेट, ठीक है। दैट इज एटिपिकल डिप्रेशन। आप देखोगे बहुत सारे लोग को होता है, इसमें ये चीज सिग्निफिकेंटली जो इसमें देखा जाता है, जो चेंज, दैट इज सिग्निफिकेंट वेट गेन हो सकता है बिकॉज देर इज एन इंक्रीज इन एपेटाइट और एक्सेसिव स्लीप देखा गया है इसमें, ठीक है। ये दो सिम्टम्स स्पेसिफिक देखा जाता है एटिपिकल डिप्रेशन में। अदरवाइज एटिपिकल डिप्रेशन इज वेयर जहां पे आपकी मूड रिएक्टिविटी होती है कि आप हमेशा एपिसोडिक सिम्टम्स ही चल रहे होते हैं डिप्रेसिव के, बट कभी कभी आप एक स्टेबल स्टेट में जाते हैं। एंड दैट्स द रीजन कई बार ना लोग जज भी करते हैं, मैंने देखा है कि कोई पर्सन डिप्रेशन से सफर कर रहा है, ही इज गोइंग थ्रू अ लॉट, और कभी कुछ ऐसा हुआ कि वो दो लोगों से थोड़ा हंस के बात कर लिया या थोड़े अच्छे से माहौल में आके बात कर लिया, तो लोग जज करते हैं कि नहीं नहीं ये पर्सन तो फेक कर रहा है या सिंपैथी के लिए ऐसा बिहेव कर रहा है, बट एक्चुअली दैट्स नॉट ट्रू। दैट पर्सन इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट, इज जस्ट कि दैट इज अ फॉर्म ऑफ डिप्रेशन। Okay, so next form of depression is melancholic depression. Generally melancholic depression is where जहाँ पे आप इस कैटेगराइज जस्ट लाइक जहाँ पे आपको लॉस ऑफ प्लेजर हो जाए, मतलब जो चीजें आपको करनी पसंद है, जो एक्टिविटीज आपको करनी पसंद है, जो भी चीज आपको प्लेजर देता है, जो भी चीज आप इंजॉय करते हैं, वो चीज आप इंजॉय करना बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम बहुत पसंद करते हैं खाना, बट लाइक आइसक्रीम इज नो मोर समथिंग, इज नॉट समथिंग जो कि अब आपको हैप्पीनेस दे रहा है। आइसक्रीम इज नॉट समथिंग जो आप इंडल्ज होना चाह रहे हो। मे बी यू लव पेंटिंग या डांस करना आपको बहुत पसंद है, बट नाउ वो पेंटिंग या डांस इज समथिंग दैट इज आपके लिए बहुत बर्डन लग रहा है कि यू डोंट वांट टू डू डू दैट, तो वैसे केस में हम क्लासिफाई करते हैं उनको मेलाकोलिक डिप्रेशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। अभी किसी ने पूछा भी था चैट बॉक्स में, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन तो वैसे एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, बट अगर मैं छोटे फॉर्म में पोस्टपार्टम डिप्रेशन समझाऊं, तो आप देखोगे विमेन जनरली आफ्टर गिविंग बर्थ देयर इज अ पीरियड ऑफ टाइम, आप देखोगे जहाँ पे विमेन एक्चुअली सफर्स फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो इसमें भी बहुत क्लासिफिकेशन है, देयर इज ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड काइंड ऑफ थिंग, बट ब्लूज जनरली शॉर्टर फॉर्म के लिए होते हैं, बट पोस्टपार्टम डिप्रेशन जब 6 महीने से ज्यादा लास्ट करे, दैट सिमिलर सिम्टम्स, फॉर एग्जांपल फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, बहुत ही लॉस ऑफ इंटरेस्ट, बहुत लो इन एनर्जी, फटीग, पुअर कंसंट्रेशन, आप देखोगे स्पेशली बर्थ देने के बाद 6 महीने तक अगर ये सारे सिम्टम्स लास्ट करते, दैट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। समहाउ
आई फील हमारे कल्चर में पोस्टमार्टम डिप्रेशन को बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिकॉज द मोमेंट एंड वी डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर ऑल्सो गिविंग बर्थ विमेन के बॉडी में इतने हॉर्मोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स सिक्रीट कर रहे होते, देयर इज सो मच ऑफ इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स that is actually affecting the mood, and that is actually leading to postpartum depression. But somehow everyone is, आप देखोगे हमारे अराउंड, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट कह सकते हो एक थॉट प्रोसेस है कि एक विमेन जैसी बर्थ दे रही है चाइल्ड के, उसके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट होना चाहिए, एंड उसके लिए देयर इज नो रीजन टू बी सैड, एंड समहाउ ये एक्सेप्टेंस हमारे सोसाइटी में कम है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड क्योंकि उसके हॉर्मोन्स के इतने इम्बैलेंस है, न्यूरोट्रांसमिटर्स के इतने इम्बैलेंस होने के कारण एक्चुअली इट लीड्स टू पोस्टमार्टम डिप्रेशन। एंड आप बहुत, एंड आई हैव सीन कि अ लॉट ऑफ केसेस, मतलब बहुत सारे केसेस में पोस्टमार्टम डिप्रेशन के, बट समहाउ उसे एज अ ब्लूज कंसिडर कर दिया जाता है। कई बार ब्लूज को भी आप देखोगे अंडरस्टैंड नहीं किया जाता, दे एक्चुअली देयर इज अ क्लियर डिस्क्रिमिनेशन, फॉर दैट मैटर डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्लूज एंड पोस्टमार्टम, जो कि मिसिंग होता है। बट पोस्टमार्टम डिप्रेशन इज समथिंग जो कि वेस्ट में काफी रिकॉग्नाइज किया गया है, एंड देयर इज ऑब्वियसली देयर इज बायोलॉजिकल कॉजल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल कॉजल फैक्टर, स्पेशली अगर देखोगे कोई विमेन का पास्ट रहा है कि she has been a patient of depression, or for that matter she has been vulnerable when it comes to emotion, या family उतनी अच्छी नहीं रही हो, कॉन्फ्लिक्टेड इन लॉज और कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप रहा हो पार्टनर के, बहुत ज़्यादा हाई चांस हो जाता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन का। बट समहाउ इट्स सैड एंड डिसहार्टनिंग कि अभी भी इंडिया में एक्सेप्टेंस कम है, लोगों को रियलाइजेशन कम है। लोग सोचते हैं दिस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, लोग सोचते हैं कि इट्स ओके, ये ठीक हो जाएगा, बच्चे के साथ टाइम बिताओगे तो ठीक हो जाएगा, बट दे डोंट रियलाइज कि एक्चुअली दैट वुमेन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, मतलब दैट इज एक्चुअली सीरियस, बट रिकॉग्निशन इन इंडिया is still very low in case of postpartum depression. तो postpartum is a stage and period जो कि generally women birth देने के बाद होता है, and आप देखोगे वो 6 month के लिए लाई करता है अगर symptom, तो हम postpartum depression कहते हैं उसे। ओके, एंड इट्स अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, तो अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे बिकॉज वी नीड टू एड्रेस स्ट्रेस एज वेल। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ डिप्रेशन इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसे हम सैड भी बोलते हैं। आपने सुना भी होगा इसके बारे में कि लॉट ऑफ पीपल सफर फ्रॉम डिप्रेशन, बट वो सर्टन सीजन में बस लो फील करते हैं। कि आप देखोगे सर्टन सीजन में वो बहुत सैड, लो, और कुछ नहीं करने का मन करता है, दैट कम्स अंडर सैड। जनरली हमने इसे, जो हमने देखा, दैट इज एसोसिएटेड विद विंटर्स, कि विंटर्स, इसको विंटर ब्लूज या विंटर डिप्रेशन भी बोलते हैं, कि ये डिप्रेसिव एपिसोड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको सर्टेन सीजन में आता है। एंड क्या मैम ऐसा हो सकता है कि मुझे इस सीजन आया तो आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? नो, एटलीस्ट 2 सीजन कॉन्जिक्यूटिव आने चाहिए, तब हम इसे डायग्नोज करते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सैड सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो बेसिकली एक सर्टेन सीजन में, स्पेसिफिकली हमने विंटर में देखते हैं, विंटर में लोग बहुत लो फील करते हैं, बहुत सैड फील करते हैं। समहाउ दैट इज आल्सो द रीजन कि डोपामीन आपके बॉडी में कम रिलीज होता है। डोपामीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेजर, एंड सेरोटोनिन भी रिलीज कम होता है बिकॉज ऑफ द हैप्पी हार्मोन आप बोलोगे, तो यू फील लो एंड सैड। बट अगर सर्टेन सीजन में आप बहुत लो फील करते हो, एंड इट इज लाइक consecutive 2 years के लिए आप सर्टेन सीजन में बहुत सैड एंड डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, देन आप डायग्नोस होते हो अकॉर्डिंग टू DSM-5, दैट इज सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। ओके, so now last type is moderate depressive disorder. Now moderate depressive disorder is generally जब certain, now mild and major आपको समझ में आ गया होगा। mild एकदम lower form of symptoms जो persist कर सकता है 2 years तक, and that is also known as dysthymia. And major आपको समझ में आ गया कि major episodes होते हैं। Now what is moderate? Now moderate जो specifically DSM-4 explain करता है कि if there is a significant disturbing situation जो कि episode of depression ला रहा है, and that is lasting for 6 months, and फिर वो ठीक हो जा रहा है, then that is categorized in moderate depressive disorder. Means for example कोई भी आपके लाइफ में ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन या स्ट्रेसर या कोई क्राइसिस का सिचुएशन आया, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप डिप्रेशन में गए, एंड आफ्टर 6 month तक सिम्टम्स लास्ट किया, ऑब्वियसली द इम्पैक्ट इज इन मॉडरेट लेवल, ठीक है। एंड आफ्टर 6 month, फिर 6 month और आफ्टर 8 और 9th month फिर वो सिम्टम्स
नॉर्मल हो गया एंड यू आर नॉट सफरिंग, देन दैट इज नोन एज मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। स्पेसिफिकली कैसे केसेस होते हैं मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर के, आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन डिप्रेशन में जाता है बिकॉज उसके स्पाउस या द काउंटर पार्ट को वो लूज करते हैं, या उनके काउंटर पार्ट का डेथ हो जाए, तो आप देखोगे देयर इज अ डिप्रेसिव एपिसोड। तो वो डिप्रेसिव एपिसोड अगर सिचुएशनल हो जाए, एडजस्टमेंट इशू हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो, चेंज ऑफ लोकेशन हो, आप कहीं और रहते हो, आप टोटली डिफरेंट जोग्राफिकल कंडीशन में चले गए, देयर इज नो वन टू टॉक बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर, कोई है नहीं, वैसे केस में भी मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। वो सिचुएशनल होता है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर से हम उसको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्राइसिस के कारण है, तो लोकेशन चेंज, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऑफिस में कोई सर्टन डिपार्टमेंट देख रहे हो, ठीक है, एंड आपका कोई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट आपका चेंज हो गया, तो यू सी कि अगर वो डिपार्टमेंट आपको बॉदर कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज यू आर नॉट एबल टू एडजस्ट एंड यू आर हैविंग दैट डिप्रेसिव एपिसोड, दैट इज कैटेगराइज्ड इन मॉडरेट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ओके, तो यहाँ पे हम डिप्रेशन को वाइंड अप करते हैं। लेट मी सी अगर चैट में कुछ और आए हैं पूछने के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट स्ट्रेस। हाँ, डिप्रेशन में नींद नहीं आती है, मतलब देयर आर पीपल जिसे डिप्रेशन में बहुत नींद आती है, एंड देयर आर पीपल जिसे डिप्रेशन में बिल्कुल नींद नहीं आती। इंसोम्निया इज वन वन ऑफ द सिम्टम, या हाइपरसोम्निया होता है जिन्हें बहुत नींद आती है। बहुत नींद का मतलब होता है कि वो अपना कंप्लीट स्लीप साइकिल सो लिए, उसके बाद भी उन्हें नींद आ रही है, ठीक है। नींद को कैसे मैनेज करें, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक जो हम डिस्कस कर सकते हैं अलग से, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ स्लीप उसके लिए एक अलग ही टेक्निक और वगैरह हम यूज करते हैं। हाँ, इंसोमिया को हम ट्रीट कर सकते हैं, यस। एक्चुअली अगर आप देखोगे माइल्डर एंड मेजर फॉर्म ऑफ डिप्रेशन इज क्योरेबल, ठीक है। क्योरेबल का मतलब है कि आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली फॉलो अप इज नीडेड सो दैट कि वापस वो सिम्टम आपको ट्रिगर ना करे, एंड यस विदाउट मेडिसिन भी आप डिप्रेशन को क्योर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप प्रॉपर टाइम पे और विथ सॉरी इनिशियली आ जाए आप फॉर थेरेपी, एंड सेम टाइम पे वो थेरेपी लास्ट करना चाहिए। दिस इज ऑल्सो अ मिथ कि आपको लगता है 2 या 3 थेरेपी से आपका ट्रीटमेंट हो सकता है। थेरेपी इज बेसिकली स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग होता है, तो आपको थेरेपी को टाइम देना पड़ता है। सम हाउ इट्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ थेरेपी, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होता है, बट थेरेपी लॉन्ग लास्टिंग है एंड टाइम लेता है, बट यू कैन आप एक्चुअली डिप्रेशन क्योर कर सकते हो विदाउट मेडिसिन विद द हेल्प ऑफ थेरेपी। अ, विक्रांत सिंह कि हम खुद को इतना ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो हम खुद को प्रोग्राम तो नहीं कर रहे डिसऑर्डर के लिए। नो, नॉट एट ऑल। जस्ट रिमेंबर, मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग डिसऑर्डर या आप इन जनरल आप डिसऑर्डर्स जब पढ़ रहे हो, तो हमेशा ऐसा लगेगा कि सारे सिम्टम्स हम में, एंग्जाइटी भी है, स्ट्रेस भी है, डिप्रेशन भी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उसका इंटेंसिटी और थ्रेशोल्ड इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर वो नहीं क्रिएट कर रहा है देन दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर, दैट इज वेरी नॉर्मल। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग एल्स एंड डिप्रेशन इज समथिंग एल्स, ठीक है। वी कांट रिलेट EI विथ डिप्रेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस is basically about understanding of emotion and like empathy. There are different components, we can't relate it to depression. I understand that it is coming from emotionally vulnerable state, but वो same चीज नहीं है। Emotion has like different component। इफ समवन इज टेकिंग मेडिसिन डिफिकल्ट है, बिकॉज आप वंस यू आर टेकिंग मेडिसिन आप बहुत डिपेंडेंट हो जाते हो, एंड बिकॉज मेडिसिन का बहुत ही क्विक इम्पैक्ट होता है, सेरोटोनिन लेवल आपके हाई कर देते हैं, तो इट्स रियली डिफिकल्ट, बट हाँ विद टाइम हो सकता है, बट एटलीस्ट मिनिमम 2 years लगेंगे अगर प्रॉपर थेरेपी लोगे तो। ओके, सीबीटी इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो एक और डिटेल, ये वो बहुत ही अलग से पढ़ना, बिकॉज सीबीटी इज समथिंग जो बहुत ही डिटेल थेरेपी है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। डिप्रेशन ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके, सीबीटी इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक जो कि हम यूज करते हैं इन केस ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो आई गेस
हम लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रेस बिकॉज आई गेस टाइम अदरवाइज बहुत रन कर रहा है। तो मोर और लेस मैंने आपके क्वेश्चंस डील कर लिए, तो देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो अलग से डील करने होंगे लाइक सीबीटी एंड एवरीथिंग, बट अदर देन दैट हम बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ ही सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस इज समथिंग जो कि ऑन अ डेली बेसिस एवरीवन इज फेसिंग। नाउ यहाँ स्ट्रेस इज नॉट अ डिसऑर्डर, बट यस स्ट्रेस कैन बिकम अ प्रॉब्लम। ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड ये कोई डिसऑर्डर नहीं है। स्ट्रेस इज समथिंग जो हर किसी को होता है, बट स्ट्रेस कैन बी अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फिजिकल, इमोशनल और फॉर दैट मैटर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बेसिकली स्ट्रेस होता क्या है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में स्ट्रेस समझाऊं तो स्ट्रेस सिर्फ बॉडी का रिएक्शन या रिस्पॉन्स है जो आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपके लाइफ में अच्छे और बुरे चेंज आते हैं। ठीक है, हो सकता है अच्छा चेंज हो जो कि आपके लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा, आपका आपका ड्रीम जॉब हो गया होगा, आपका कुछ बुरा चेंज हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हुआ हो। ठीक है, कोई भी लाइफ में आपके जो चेंज आते हैं, आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज स्ट्रेस। ठीक है, सिंपल शब्दों में स्ट्रेस इज नथिंग, आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड या रिएक्ट कर रहा है टू एनी चेंज इन योर लाइफ। ठीक है ना। अब लॉट ऑफ पीपल कम टू मी कि स्ट्रेस इज समथिंग जो सबको हो रहा है, तो इट्स नॉट अ डिसऑर्डर, तो व्हाई आर वी इवन डिस्कसिंग। ठीक है, व्हाई, बिकॉज स्ट्रेस इज समथिंग, आपने एक चीज देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आज आप, फॉर एग्जाम्पल आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम या डिफिकल्ट सिचुएशन आया है। फॉर एग्जाम्पल आज आपको 5 बजे कहीं जाना था एंड सम हाउ यू आर लेट। ठीक है, क्या हुआ, एक ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक चेंजिंग सिचुएशन, आपके कोई भी लाइफ का एक सिचुएशन आया जो कि चेंज हुआ। ठीक है, ना आप कैसे रिएक्ट करते हो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है ना। किसी के लिए 5 बजे अगर जाना था कहीं और लेट भी हो गए तो उन्हें वो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, दे आर वेरी चिल, दे आर वेरी ओके। बट देर आर पीपल क्योंकि उन्हें 5 बजे जाना था और वो 1 मिनट भी लेट हो गए, वो बहुत ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी में चले जाते हैं। तो स्ट्रेस इज वेरी सब्जेक्टिव एज वेल, ये कोई डिसऑर्डर नहीं। एक एक सिचुएशन किसी के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है और किसी के लिए नहीं हो सकता है। तो स्ट्रेस बहुत ही सब्जेक्टिव एंड स्ट्रेस वैरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। तो ऑब्वियसली डीलिंग ऑफ स्ट्रेस भी वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। किसी के लिए एग्जाम स्ट्रेस हो सकता है, पर किसी के लिए एग्जाम स्ट्रेस नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके, नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, हम शॉर्ट में जा रहे हैं क्योंकि हमने डिप्रेशन बहुत ही डिटेल में डील किया। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। सॉरी, वेट, 1 मिनट, सॉरी। यस, राइट। सो हाँ, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस। तो कोई भी कॉजेज हो सकता है स्ट्रेस का। एज आई सेड स्ट्रेस इज वेरी सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट कॉज जहाँ जो कि यहाँ पे मेंशन है दैट इज, बट एग्जाम इज ऑल्सो वेरी सब्जेक्टिव। फॉर एग्जाम्पल कल आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है, हो सकता है किसी पर्सन के लिए वो चीज बहुत स्ट्रेसफुल हो, बट किसी पर्सन के लिए वो बहुत स्ट्रेसफुल ना हो। सिमिलरली मीटिंग द डेडलाइंस, आप देखोगे देयर आर पीपल हु आर वेरी पंक्चुअल। तो अगर वो पंक्चुअल नहीं होते या अपना काम से टाइम से काम नहीं करेंगे, तो दे आर इन लॉट ऑफ स्ट्रेस। ऑन द अदर हैंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल के डेडलाइन क्रॉस भी कर जाएगा तो उन्हें वो चीज स्ट्रेस नहीं देता है। तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉजेज, हमेशा माइंड में ये रखो कि स्ट्रेस इज समथिंग दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है ना। सिमिलरली पीयर प्रेशर हो सकता है, डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग टास्क हो सकता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ा रीजन मैंने देखा है स्ट्रेस का, दैट इज पुअर टाइम मैनेजमेंट। लोग क्योंकि अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते, तो दे एक्चुअली फील वेरी स्ट्रेस्ड। आपका कोई काम रह गया, आपने काम नहीं कर पाए, तो यू फील वेरी स्ट्रेस्ड अगर रह जाता है तो। ठीक है, तो आप देखो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मेजोरिटी लोगों के साथ यही होता है। एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्ड कर लिया, नाउ यू थिंक कि अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो यू आर इन वेरी स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई पर्टिकुलर ड्रीम जॉब हो, ड्रीम कॉलेज जाना हो, और आपका वो फुलफिल ना हो, बिकॉज दैट ड्रीम जॉब और फॉर दैट मैटर दैट ड्रीम कॉलेज इज समथिंग जो कि बहुत अनरियलिस्टिक था, एंड नाउ यू आर स्ट्रेस क्योंकि आप वो मीटअप नहीं कर पा रहे हो। फाइनेंस मेजर रीजन जो देख सकते हो स्ट्रेस का। मैं लॉट ऑफ पीपल में देखती हूँ वर्क और फाइनेंस सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है स्ट्रेस में। एंड स्पेसिफिकली एज आई सेड, इंडिया में वर्क लाइफ बैलेंस इज नियरली जीरो, एंड दैट्स द रीजन कि आप देखोगे
फाइनेंस और वर्क समहाउ स्ट्रेस का बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि समहाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद योर फाइनेंस, समहाउ यू आर स्ट्रगलिंग विद द वर्क लाइफ बैलेंस, और उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है। आई हैव सीन कि फाइनेंस एंड वर्क लाइफ बैलेंस, ये दोनों का ही फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट रहता है स्ट्रेस पे। नाउ सिमिलरली relationships also plays a very important role when it comes to stress and past experience. So these are certain causal factors या causes बोल सकते हो या sources of stress बोल सकते हो, but as I said, this is something very subjective, person to person vary करेगा when we are talking about stress. ओके, नाउ देयर आर सर्टेन सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। वैसे तो जब मैं सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस की बात करूँ तो वी कैन ऑल्सो क्लासिफाई सिम्टम्स ऑन बेसिस ऑफ इमोशनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और फिजिकल फैक्टर, बट बेसिक फैक्टर जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो दैट एक्चुअली योर बॉडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस और नॉट, दैट इज excessive of sweating, headache, sleeplessness, lack of hunger, lack of concentration, lack of performance and anxiety। आप देखोगे जब पर्सन स्ट्रेस में रहता है फिजिकल पेन होना शुरू है, आप देखोगे आपके हेड पे बहुत पेन, या फिर आपके कॉलर बोन के पास आप बहुत टेंस्ड फील करते हो, आप स्लीपलेस, आपको नींद नहीं आ रही हो, या फिर आप बहुत ज्यादा इरिटेटेड फील करते हो, लैक ऑफ हंगर, भूख मिट जाती है, कॉन्सेंट्रेशन एंड परफॉर्मेंस में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है स्ट्रेस का। आप देखोगे आप बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ले रहे हो एंड देन यू आर परफॉर्मिंग समथिंग एंड फॉर दैट मैटर यू आर डूइंग समथिंग, आप देखोगे उसमें आपके परफॉर्मेंस बहुत डिटोरिएट हो रहा होगा। एंड स्ट्रेस का कहीं ना कहीं बाई प्रोडक्ट इज एंग्जाइटी। इफ यू आर इन स्ट्रेस, आप देखोगे आप एंग्शियस रहते हो, आप एंग्जाइटी भी फील करते हो, तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। ऐसे अगर आप देखोगे स्ट्रेस इज अ स्टेट ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, तो समहाउ बिकॉज ऑफ दैट फाइट एंड फ्लाइट आपके फिजियोलॉजिकल बॉडी में चेंजेस आते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंजेस आप देखोगे कि आप इम्पैक्ट देख सकते हो। ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, अगर हम नर्वस सिस्टम को पढ़ने जाएंगे एंड वी कैन स्टडी लाइक पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि फाइट एंड फ्लाइट में कैसे जब स्ट्रेस में बॉडी जाता है तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है एंड उसके कारण बॉडी में चेंजेस आता है। बट आप जब कंटिन्यूअस स्ट्रेस में रहते हो तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव ही है, पैरासिम्पैथेटिक ने उसे सप्रेस ही नहीं किया, जो कि एक कॉमन प्रोसेस होता है। तो उतने डिटेल में हम नहीं जा रहे बिकॉज ऑफ द टाइम एंड एवरीथिंग, बट लेट्स गो अहेड और देखते हैं। ओके, नाउ हम स्ट्रेस को एक्चुअली कैसे डील करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इटसेल्फ इज अ कोर्स, टॉपिक भी नहीं है, इफ आई कैन से इटसेल्फ इज अ कोर्स। स्ट्रेस को समझना, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस जो मैंने यहाँ पे अभी डील नहीं किया है, जस्ट टू मेक इट शॉर्ट, बिकॉज हमने डिप्रेशन बहुत डिटेल में किया। बट देयर इज पॉजिटिव स्ट्रेस, देयर इज नेगेटिव स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस, ये सब आपने नाम सुना होगा, बट मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ बिकॉज इट्स अ डिफरेंट अनदर स्लाइड, हम उस पर जा सकते हैं। And stress management similarly, for example in this slide you can say stress management भी itself it's a course, एक topic भी नहीं है, वो एक proper course है if I can say। बस the biggest thing when we are talking about stress, as I said, stress is not a disorder but stress is something जो कि हर कोई face कर रहा है। To manage it is the key, is the coping skill जो कि आपका performance और efficiency increase कर सकता है। And that's the reason आप देखोगे stress management में n number of courses चल रहे हैं, because if you're able to manage your stress effectively, you will be able to perform in a better way, or for that matter perform in a better way in a sense कि you are able to maintain your balanced lifestyle, for that matter healthy balanced lifestyle, because of the stress। आज के टाइम पे तो stress के कारण there are so many physical and psychological issues, and when I'm saying physical and psychological issues related to mental health issues or physical issues, for example obesity or weight change and things, sleeping pattern issues, क्या आप देखते हो इट्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। यहाँ पे मैं कोट करना चाहूंगी एक रीसेंट, आई डोंट नो आप कितना सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया चेकआउट करते हैं, बट बिकॉज आई एम शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ दैट मैटर, टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस, recently very popular person online I guess, he's founder of Zerodha, तो that person is very fit, बहुत अच्छा डाइट फॉलो करते हैं, दैट पर्सन इज अ जिम पर्सन, लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज, मतलब अपने हेल्थ का अपना 100% ख्याल रखते हैं। ठीक है, एंड दैट पर्सन अभी रिसेंटली दैट पर्सन को ब्रेन स्ट्रोक आया। ठीक है, एंड दैट पर्सन वाज क्वेश्चनिंग द मोमेंट, ऑब्वियसली ब्रेन स्ट्रोक आया, उसके बाद जब वो रिकवर किए आफ्टर लाइक 6 मंथ एंड 7 मंथ और सो ऑन, वो पर्सन अपने आप को कॉन्शियसली इंट्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया कि वाई मी, मैं अपना एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली प्रॉपर लाइफस्टाइल ये कर रहा हूँ, मैं खाना टाइम से खाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, आई एम गिविंग एवरीथिंग टू माई बॉडी जो उसे मिलना चाहिए, बट वाई मी। एंड एक्चुअली जो उसे डायग्नोसिस में दैट पर्सन, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट जो भी पर्सन होगा, उन्होंने बोला कि
इट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ वर्क. इतना ज्यादा ओवरबर्डन है पर्सन वर्क के कारण, and इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड है ऑब्वियसली, बिकॉज he is a founder CEO of a company, so obviously the amount of stress is you can't compare from a regular 9 to 5 job. That's the reason it is leading, that's the reason that person actually went through the brain stroke thing. And because of the stress, sleeping pattern में बहुत ज़्यादा impairment था, बहुत कम सोने के कारण, दैट वाज लीडिंग टू. तो समहाउ जस्ट इमेजिन कि स्ट्रेस का कितना स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट एंड सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है दैट वी इग्नोर. ओके, सो दैट्स द रीजन स्ट्रेस मैनेजमेंट आप देखोगे तो इट्सेल्फ अ ह्यूज टॉपिक. टू मैनेज स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यू कैन डू विथ सो मेनी टेक्निक्स. देयर इज नेचर, योगा, म्यूजिक, थेरेपी, स्पा, एक्सरसाइज, हॉबी. Now as a person, as a psychologist, there is no one therapy for one person. ठीक है, it's very subjective. आप person से मिलते हो, उसके stress के situation को देखते हो, उसके stress के threshold intensity और degree को देखते हो, and then accordingly आप approach use करते हो. सकता है single approach work कर जाए, हो सकता है multiple approach required हो. Totally depends from person to person. Okay. ना स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो 4-5 टेक्निक, बिकॉज वी हैव शॉर्ट टाइम, तो ये जो 4-5 टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी टू हैंडल स्ट्रेस इन अ बेटर वे इज फर्स्ट, अवॉइड और ऑल्टर द सिचुएशन. इफ यू नो कि ये सिचुएशन आप में स्ट्रेस ट्रिगर करता है, ट्राई टू अवॉइड. फॉर एग्जाम्पल, फॉर इन माई केस, मुझे टाइम से होना बहुत मैटर करता है. लाइक आई नीड टू बी पंक्चुअल एवरीवेयर. मैं बिफोर टाइम हर जगह रहती है, तो आई नो कि अगर मैं टाइम से नहीं होंगी तो मुझे बहुत स्ट्रेस होगा, एंड दैट विल लीड टू एंग्जाइटी. तो आई ट्राई टू अवॉइड ऐसा कोई भी सिचुएशन जहां पे मैं टाइम से ना पहुंचूं. तो बिफोर हैंड करना मैं चीजें पसंद करती हूँ. तो अवॉइड और ऑल्टर द सिचुएशन. सेकंड, लर्न टू से नो. दिस इज सो इम्पॉर्टेंट. हम ना चाहते हुए भी लोगों को हाँ बोलते जा रहे हैं. येस वी कैन डू दैट, येस, हाँ हाँ मैं आ जाऊंगा, हाँ हाँ मैं ये कर लूंगा, बट यू डोंट वांट टू. तो लर्न टू से नो, स्पेशली इन योर वर्क प्लेस जहाँ पे पॉसिबल हो. ओके, आई अंडरस्टैंड आप हमेशा अपने सीनियर या बॉस को नो नहीं बोल सकते हो, बट स्पेशली इन सिचुएशन या केस जहाँ पे आप ना बोल सकते हो, प्लीज डू से दैट. To learn to say no, that is very important. Now avoid people or situation who create stress. For example, there are certain people जो आपके family में हो सकते हैं, आपके friend circle में हो सकते हैं, जो कि आप पे stress trigger करते हो. Try to avoid certain people so that कि आप एक sane mind maintain कर पाए. ठीक है, try to avoid. Okay fine, if you can't try to avoid that person, at least try to avoid the conversation with that person, so that कि आपका stress trigger ना हो. ठीक है. नो प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, स्पेशली जो वर्क लाइफ स्ट्रेस होता है, आप देखोगे उसके लिए आई ऑलवेज से दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. एंड टू डू लिस्ट में आपका कैटेगराइजेशन होना चाहिए. आपके लिए प्रायोरिटी में कौन कौन से गोल्स है, प्रायोरिटी में कौन कौन से वर्क है, जो नॉन प्रायोरिटी में उनका अलग सेक्शन होना चाहिए, सो दैट आप ही स्मार्टली काम कर सको. ठीक है. Second is express your feeling. On days when you're not feeling well, please express it rather than suppressing. अपने इमोशन को आप जो सप्रेस करते हो, आप रिकॉग्नाइज करते हो, यू डोंट रियलाइज यू आर एक्चुअली पाइलिंग इट अप. तो एक्सप्रेस योर फीलिंग. एंड लास्ट इज मैनेज योर टाइम. मैनेजिंग टाइम इज एवरीथिंग, एंड आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज वी हैव लेस टाइम एंड अ लॉट ऑफ वर्क, बट मैनेजिंग योर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलर टेक्निक यूज करना चाहिए. आपके जो प्रायोरिटी में काम हो आप उससे इनिशियली रखिए, एंड जो काम आपके लिए लेस प्रायोरिटी में है उसे लेटर ऑन रखिए. ठीक है. ओके, टाइम मैनेजमेंट. ओके, नाउ टाइम मैनेजमेंट भी इटसेल्फ इज अ 1 घंटे का सेशन हो सकता है, बट चलो टाइम मैनेजमेंट टिप्स, हम कुछ टिप्स के बेसिक टिप्स के बारे में बात कर सकते हैं. हाउ कैन यू टाइम मैनेज, बिकॉज मेजोरिटी मुझे लगता है स्टूडेंट्स को, हाउस होल्ड हाउस मेकर्स को भी, फॉर दैट मैटर अगर आप ऑफिस भी जाते हो, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो आपको डिफिकल्ट होता है दैट इज टू मैनेज टाइम. एंड हाउ यू कैन मैनेज टाइम इज बेसिकली डूइंग दीज फ्यू स्टेप्स. यू कैन सी, फर्स्ट, सेट गोल्स करेक्टली. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई सजेस्ट कि हर रोज जब आप सुबह उठो, अगर सुबह पॉसिबल है, नहीं तो फॉर दैट मैटर एक रात पहले, और हमेशा एक अपना अपने कॉपी में अपने गोल्स को सेट करो. दीज आर द वर्क दैट यू नीड टू डू. मींस बेसिकली द टू डू लिस्ट अपना रेडी करो. एंड वो टू डू लिस्ट हायरार्की में होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम सबसे ऊपर होना चाहिए और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट काम आपका नीचे होना चाहिए. तो सेट योर गोल्स करेक्टली. ठीक है ना. अब आपने किया हुआ है कि आपने गोल्स बस लिख दिए हैं, 2-3 गोल्स लिखे, बाकी लिखे ही नहीं, एंड आप chaos क्रिएट हो रहा है कि आपने 2 इंपॉर्टेंट काम तो कर लिए, बट 2 जो लेस इंपॉर्टेंट है वो काम हुए ही नहीं, बिकॉज आपने कहीं उसे सेट ही नहीं किया. तो सेट योर गोल्स करेक्टली. ए, प्रायोरिटाइज वाइजली. ऑब्वियसली जो
आपके लिए इंपॉर्टेंट काम है, एज आई सेड, जो आपने टू डू लिस्ट बनाया है वो इंपॉर्टेंट काम इनिशियल होना चाहिए, एंड लेस इंपॉर्टेंट काम आप उसको लोअर या फिर नीचे लिख सकते हो। ठीक है, सेट अ टाइम लिमिट, सारे गोल्स का टाइम लिमिट वहां मेंशन, एग्जाम्पल इफ यू नीड टू डू सम वर्क, वहां पे एक टाइम लिमिट मेंशन हो कि ओके फाइन, दिस दिस इज समथिंग जो कि मैं 2 दिन में कर लूंगी, या दिस इज समथिंग जो मैं 1 दिन में कर लूंगी। तो यू नीड टू फिक्स दैट टाइम लिमिट सो दैट आप अकॉर्डिंगली काम करो, एंड रियलिस्टिक टाइम गोल प्लीज सेट करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा, आपको पता है ये काम 1 हफ्ता लगेगा, बट मैंने उसे 2 दिन किया है। बच्चों को मैंने देखा है कि उन्हें पता है ये पर्टिकुलर पेपर उन्हें पढ़ने के लिए 1 हफ्ता लगेगा, बट उन्होंने गोल ही सेट किया है 2 दिन। तो आई एम टेलिंग यू, देर इज वहां पे इफेक्टिवनेस टोटली नल एंड वॉइड हो जाता है। तो टाइम लिमिट भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, नाउ सिमिलरली आप देखोगे, प्लान अहेड, आप सारी चीजों को प्लान करो अहेड एंड अकॉर्डिंगली चीज करो। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल देर इज एन इम्पॉर्टेंट डे, एंड आप देखोगे उस इम्पोर्टेंट डे के 1 दिन पहले अगर आपने सारा कुछ प्लान कर लिया, क्योंकि मुझे ये करना है, सारा आपने अपना कपड़ा रेडी करके बाहर रख लिया है, आपने अपना बैग सेटअप कर लिया, आपको जो ले जाना ऑफिस आपने वो सेटअप किया, आप देखो नेक्स्ट डे आप बहुत इजीली सारा चीज कर लेते हो, एंड बहुत स्मूथली वो चीज हो जाता है। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू स्टेप्स जो कि आप यूज कर सकते हो टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, नाउ अडेप्ट टू सिचुएशन। नाउ कैसे हम अडेप्ट कर सकते हैं? ऑब्वियसली टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। आई हैव सीन मेजोरिटी इंडिविजुअल जो कि पॉजिटिव एटीट्यूड या ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी अगर देखोगे, तो मेजोरिटी सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को भी बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव में लेते हैं, एंड दैट्स द रीजन कि डिफिकल्ट सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा उनको स्ट्रेस ट्रिगर नहीं करता है। बट इट्स ओके अगर आप हर पर्सपेक्टिव, हर सिचुएशन को पॉजिटिवली नहीं भी ले पाते हो, देयर इज ऑल्सो टेक्निक जिसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हैं। इट्स ओके, देयर आर डिफरेंट पीपल। एबीसी टेक्निक होता है, वी विल टॉक अबाउट द एबीसी टेक्निक, एंड एडजस्ट योर स्टैंडर्ड्स। ऑब्वियसली आप हमेशा अपने स्टैंडर्ड्स को टॉप में रख के, एंड इफ यू डोंट हैव दैट टाइम एंड स्टिल यू आर, आपने आप अनरियलिस्टिक गोल सेटअप कर दिए, इट वोंट वर्क। तो आपको रियलिस्टिक गोल पे वर्क करना होगा। Now let's come to the ABC technique that we were talking, that is adversity, beliefs and consequences. ठीक है, now adversity, belief and consequences होता क्या है कि जब भी आपके लाइफ में कोई adverse situation आता है, उस सिचुएशन के साथ पीछे से आपका कोई मेमोरी आता है जो आपके बिलीफ की तरह काम करता है। हाँ, आप हो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट था जो आज मुझे कॉलेज में सबमिट करना था। ठीक है, एंड समहाउ वो असाइनमेंट मैं नहीं आज कंप्लीट कर पाई। तो मेरा मेमोरी, माइंड इज सो डायनेमिक इन नेचर कि मेरा मेमोरी पीछे से कोई एक मेमोरी लेके आएगा कि उस वक्त भी आप तुमने अपना असाइनमेंट कंप्लीट नहीं किया था, मींस यू आर अ लेथार्जिक पर्सन, यू आर अ लेजी पर्सन, तुम बिल्कुल पंक्चुअल नहीं हो, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। तो दैट बिलीव्स कम विद इट, एंड द कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैंने तो जो भी असाइनमेंट था, जैसे भी बना, जो भी था, उस दिन मेरा एक एग्जाम भी था, एंड बिकॉज ऑफ दैट एडवर्स सिचुएशन एंड माई बिलीफ, जो मेरा एग्जाम जो नेक्स्ट था, वो एग्जाम बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस मेरा गया। वाई? बिकॉज वो बिलीव, वो टॉक, वो सेल्फ टॉक वहां से चल रहा था कि आई एम वेरी लेथार्जिक, आई एम वेरी लाउजी, और फॉर दैट मैटर आई एम अ पर्सन जो कि कुछ नहीं कर सकता है, मैं हमेशा ऐसी सिचुएशंस को इसी तरीके से हैंडल करती हूँ, कभी कोई चीज टाइम से नहीं कर रही हूँ। तो व्हाट यू आर डूइंग, एक एडवर्स सिचुएशन आया, आपका एक पीछे से मेमोरी बिलीव बनकर आता है, एंड दैट इज एन इरैशनल थॉट, एक मैल अडेप्टिव थॉट, एंड वो मैल अडेप्टिव थॉट आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, मीन्स आपके बिहेवियर परफॉर्मेंस को और पुअरली प्रेजेंट करता है। तो वी नीड टू चेंज दिस बिलीफ। तो एबीसी टेक्निक बेसिकली यही करता है कि कभी भी ऐसे स्ट्रेसफुल या एडवर्स सिचुएशन आ रहा है, सिचुएशन आती है, जो बिलीफ, इरैशनल बिलीफ आ रहा है, उसको हम रैशनल बिलीफ में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट वो रैशनल बिलीफ रैशनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो, ना कि मैल अडेप्टिव या इरैशनल बिहेवियर में कन्वर्ट हो। Okay, and last, I guess, yes, almost there. Now the next slide is accept your situation. Now accept your situation in terms as in, like, for example, if you are going through stress, आपको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में स्ट्रेस से go through कर रहे हो, there are certain things that you can do. Obviously you can exercise, yoga and meditation helps a lot. Yoga and meditation helps a lot because वो आपको present में रहने में help करता है। As I repeat, आप हमेशा past and future में juggle करते हो, तो योगा एंड मेडिटेशन इज समथिंग जो आपको प्रेजेंट में रहने में हेल्प करता है थ्रू योर ब्रीदिंग। प्रॉपर स्लीप, ऑब्वियसली स्लीप, देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिन्हें स्लीप में प्रॉब्लम आता है, देयर आर सर्टेन टेक्निक्स जिसके थ्रू हम हेल्प आउट करते हैं पर्सन को कि उन्हें प्रॉपर स्लीप मिले या प्रॉपर स्लीप मिले। एंड येस, डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स दैट आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो उसे कंट्रोल ना करें, एंड अपना इमोशनल
वल्नरेबल स्टेट को एग्जैजरेट ना करे जस्ट बिकॉज यू कांट कंट्रोल समथिंग, एंड लर्न टू फॉरगिव सर्टेन थिंग्स सो दैट कि आपको वो चीज स्ट्रेस ना दे। ठीक है, नाउ एंड की तरफ हम आते हुए, नाउ स्ट्रेस को, आई थिंक स्ट्रेस का एक परसेप्शन है। इफ यू स्टार्ट परसीविंग स्ट्रेस इन अ डिफरेंट मैनर, आप देखोगे स्ट्रेस हैंडल करना आसान होता है। एंड समहाउ जो मैंने आपको इनिशियली बोला कि स्ट्रेस इज वेरी सब्जेक्टिव, क्योंकि सर्टेन सिचुएशन सर्टेन पर्सन के लिए स्ट्रेसफुल होगा बट सर्टेन पर्सन के लिए नहीं। तो आई वाज सेइंग दैट क्योंकि पर्सपेक्टिव डिफरेंट है, तो रैदर कि स्ट्रेस को एज अ थ्रेट लेना, एज अ प्रेशर लेना और ओवरवेलमिंग सिचुएशन लेना, हम स्ट्रेस को ऑन द अदर हैंड एक चैलेंज ले सकते हैं दैट वी कैन कंप्लीट, और फॉर दैट मैटर एक मोटिवेटर ले सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, एंड हम मैनेज कर सकते हैं उसको। तो अगर आप देखोगे तो पर्सपेक्टिव यहाँ पे स्ट्रेस का डिफरेंट है। अगर हम पर्सपेक्टिव कोशिश करें अपने चेंज करने का, दैट इरैशनल थॉट को रैशनल थॉट में चेंज करने का कोशिश करें, तो वी कैन एक्चुअली हैंडल स्ट्रेस इन अ बेटर वे, एंड डोंट फोकस प्रॉब्लम्स, रादर हम पॉसिबिलिटीज को देखें। तो इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव। Okay, and we are ending this topic with ki it's not stress that kills us, it's a reaction actually। एक कोई भी situation हैंडल किया जा सकता है, इट्स जस्ट हाउ वी रिएक्ट, इट एक्चुअली कॉज स्ट्रेस, और फॉर दैट मैटर एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, सो यहाँ पे आई एम एंडिंग, सॉरी स्ट्रेस थोड़ा सा फास्ट हुआ बिकॉज डिप्रेशन बहुत ही डिटेल में हो गया था, तो डिफिकल्ट था स्ट्रेस को कंप्लीट करना। लेट्स सी आपके चैट बॉक्स में क्या क्वेश्चन है, सो दैट हिस्टीरिया इज नॉट अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। हिस्टीरिया वाज अ टर्म जो कि यूज किया जाता था, बट राइट नाउ हिस्टीरिया एज अ टर्म यूज नहीं किया जाता है साइकोलॉजी में, तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ डिप्रेशन। Okay, now schizophrenia is something else. Now, अगर schizophrenia है and you are going through medicine, that is very good. अगर आप schizophrenia के लिए medicine ले रहे हैं, same time पे आप therapy भी लेते रहो, because अगर कोई symptom है, कोई situation है या कोई stimulus है जो आपको trigger कर रहा है, so that आप उसे handle कर सको ना। schizophrenia के लिए you need a proper therapy and medicine। वो दोनों ही चीज़ चाहिए होता है to deal schizophrenia, for that matter to manage schizophrenia। There is no such test to measure serotonin or dopamine, but somehow you can feel, because both of them is responsible. Dopamine is responsible for pleasure, and serotonin is responsible for happiness. For example, कि मैं छोटे example से आपको समझाऊं, तो for example when you have your favorite food, तो वो जो pleasure वाली feeling आती है, that is because of dopamine। ठीक है, एंड सेरोटोनिन इज व्हेन यू फील हैप्पी। फॉर एग्जांपल ऑन अ सनी डे, जब धूप निकला होता है, तो आप देखते हो बहुत हैप्पी एंड एनर्जेटिक फील करते हो, दैट इज बिकॉज ऑफ सेरोटोनिन। हाउ टू डील विथ डिप्रेशन, basically it's a therapy। You need to understand the CBT, cognitive therapy, cognitive and cognitive behavior therapy, these two therapy works in case of depression। ओके, एंजाइटी एंड स्ट्रेस भी आप विद थेरेपी एक्चुअली कर सकते हो। स्पेशली एंजाइटी इज क्योरेबल अगर आप प्रॉपर 1 ईयर और 1.5 ईयर लोगे प्रॉपर थेरेपी। एक्चुअली एंजाइटी इज समथिंग दैट कैन बी क्योर्ड। Moderate depression is basically situational। सर्टेन सिचुएशन या एडजस्टमेंट इश्यूज या लोकेशन चेंज के कारण कोई एपिसोड ऑफ डिप्रेशन आ रहा है, देन दैट इज मॉडरेट डिप्रेशन। रेमेडी ऑफ डिप्रेशन ऑब्वियसली लाइफस्टाइल चेंजेस लाना है, बहुत सारी चीजें रेमेडी। बट इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, फर्स्ट यू नीड थेरेपी, उसके बाद यू कैन थिंक फॉर चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल एंड थॉट प्रोसेस। बेसिक या रूट कॉज ऑफ डिप्रेशन अगर देखेंगे तो इरेशनल कॉज, इरेशनल थॉट है, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट इरेशनल थॉट, दैट ओवर थिंकिंग। No, no, no. There's a person just like, do we have to observe the client for 6 months consistently? No, because कोई भी person, if that person is suffering from depression, वो generally 6 month के बाद ही उसे realize होता है कि that person is suffering from depression। अगर आपके पास वो person जब भी आ रहा है, आप उससे पूछते हो ये कब से चल रहा है, so that आपको एक टाइमलाइन पता चले कि ये कब से चल रहा है, कि ये 6 महीने से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आपके पास, जब आ गया आप उस दिन से वो थेरेपी स्टार्ट करते हो। सॉल्यूशन फॉर डिप्रेशन,
Therapy. Therapy is the only solution for depression. There is no self medication. Postpartum depression obviously require a therapy. B, what I see, obviously postpartum depression require different kind of therapy, not only CBT. हम यहाँ पे humanistic approach of therapy भी use करते हैं, कई बार client centered भी therapy use करते हैं, तो depending upon the case. Can depression lead to addiction? Yes. Depression can lead to addiction of alcohol, substance abuse, milder form of, for that matter, आप देख सकते हो binge eating is also a form of addiction. हाँ, इट कैन हैपन कि स्ट्रेस के कारण आपको नींद ना आ रहा हो, तो यू नीड टू वर्क ऑन स्ट्रेस. आपको देखना होगा ट्रिगरिंग फैक्टर क्या है, सोर्स क्या है स्ट्रेस का. अह, अगर डिप्रेशन हर टाइम रोना आए तो क्या करे, आई एम टेलिंग यू देयर इज एन इंक्लिनेशन और टेंडेंसी टूवर्ड्स मेजर डिप्रेशन. तो मेरा सजेशन होगा कि प्लीज मीट योर नियरेस्ट, फॉर दैट मैटर जो भी आपके आसपास कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, फॉर थेरेपी. इवनिंग में एट सच DSM-5 ऐसा कुछ कैटेगराइज नहीं करती कि इवनिंग में ऐसा लो फील हो, ऑल्दो सीजनल वाइज कैटेगराइजेशन है, बट एट सच डे वाइज नहीं है ऐसा कुछ. हाँ, वेरी कॉमन. अगर आज के टाइम पे देखोगे, ब्रेकअप एंड रिलेशनशिप एक्चुअली कॉजेज डिप्रेशन, एंड दैट्स द रीजन बिकॉज उस एज में यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट इमोशन, फॉर दैट मैटर दैट होल द एंटायर सिचुएशन. बट इफ दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, तो यस, आप किसी साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से प्लीज विजिट कराएं, थेरेपी के लिए वर्क करें. Now, therapy, multiple therapy है, but when we are talking about cognitive behavior therapy, depression के केस में specifically CBT और CT use करते हैं. CT is cognitive therapy, but person to person approach vary कर सकता है. Still, in case of depression, cognitive behavior therapy and cognitive therapy हम use करते हैं. विथ मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ फॉर एवरी वन, एक्चुअली यू कैन क्योर डिप्रेशन विदाउट मेडिसिन थ्रू थेरेपी. बट रिमेंबर, थेरेपी 3 या 4 सेशंस में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है. तो यू यू नीड टू शो पेशेंस एटलीस्ट 1-1.5 year, डिपेंडिंग अपॉन योर सिम्टम्स एंड कितने इंटेंस है, आपको लंबा थेरेपी रिक्वायर्ड होता है. तो 2 या 3 सेशन लेकर आप मत एक्सपेक्ट करो कि आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे. इट्स अ स्लो प्रोसेस, बट ट्रस्ट मी कि डिप्रेशन कंप्लीटली क्योर हो सकता है विदाउट मेडिसिन. CBT फुल फॉर्म कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. हाँ, मेडिटेशन एंड योगा एक्चुअली हेल्प्स यू. तो ऑब्वियसली यू शुड, if it is something जो आपके रूटीन में है, तो आई इनकरेज. वर्कलोड भी आपको डिप्रेशन और स्ट्रेस दे सकता है, यस. इंसोम्निया इज ट्रीटेबल, किसी ने पूछा है, तो यस, आप इंसोम्निया को ट्रीट कर सकते हो. यस, स्ट्रेस कैन लीड टू डिप्रेशन, यस. हमने बहुत सारे फैक्टर्स नहीं डील किए, बट स्ट्रेस कैन लीड टू साइकोलॉजिकल इश्यूज, एंड उसमें से वन इज डिप्रेशन. बहुत इजीली इमोशनल होना, दैट डजंट मीन दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. इट्स ओके, दैट्स हाउ यू इमोशनली रिएक्ट, एंड समहाउ फीमेल इन जनरल आर इमोशनली ड्रिवन. तो कभी भी सिचुएशन डिफरेंट होता है आपके लाइफ में, तो आप इमोशनली रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दैट्स योर कोपिंग टेक्निक, योर कोपिंग स्किल. दैट डजंट मीन कि यू आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. ओके, आई गेस वी आर डन. अब सारे क्वेश्चंस डन है.
नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज अ टोटली डिफरेंट थिंग. पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हम पढ़ते हैं, इफ यू आर सीइंग देम इन अ रिलेशनशिप दे आर क्वाइट टॉक्सिक, तो वो बहुत ही एक अलग टॉपिक है, हम बाद में डील कर सकते हैं उसे. किसी ने पूछा कैन वी टेक इट एज अ करियर ऑप्शन एट द एज ऑफ 47. आप करियर ऑप्शन इन मेंटल हेल्थ एज अ काउंसलर, तो यस यू कैन. नो, डिप्रेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज मूड स्विंग. आप, मैंने इनिशियली बताया DSM-5 के अकॉर्डिंग कैसे हम डायग्नोस करते हैं. What type of therapy? Cognitive behavior therapy. What is OCD? Obsessive compulsive disorder. That is a different thing. Anxiety disorder के within उसे हम categorize करते हैं. फुल्ली रिवर्स्ड देयर इज नो सच टर्म. हाँ, आप कंप्लीटली क्योर कर सकते हो. क्या चांसेस है कि वो रिलैप्स हो सकते हैं सिम्टम? यस, हो सकते हैं. ठीक है. यस, क्योर, देर आर क्योर ऑफ डिप्रेशन थ्रू डाइट एज वेल, बट आपको होलिस्टिक अप्रोच लेना होगा. मीन्स यू नीड थेरेपी, काउंसलिंग, डाइट, लाइफस्टाइल चेंजेस, एंड इट वर्क्स. थेरेपी में क्या होता है, इट्स अ ह्यूज टॉपिक. अगर कभी मौका मिला तो वी विल शेयर दिस. ओके. आई गेस ओके. सो आई गेस मैंने मोर और लेस सारे क्वेश्चंस ले लिए. बहुत सारों के क्वेश्चंस नहीं भी ले पाए बिकॉज आई गेस वी आर अप विद द टाइम. सो आई होप कि आपको डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, ऑल दो काफ़ी फास्ट हो गया था, बट डिप्रेशन एज अ कॉन्सेप्ट आप कंप्लीटली समझ गए होंगे. सो लेटर ऑन जो भी क्वेरीज है, आप आरोग्यम ये से आप डिस्कस कर सकते हैं. बट लेट्स एंड दिस, आई गेस. ओके. थैंक यू सो मच.